ہم اپنے اب چوتھے پوائنٹ پر چلیں گے. انسان کو بھی اس کو پورا کرنا چاہیے. انسان کو بھی اس کو پورا، جیسے مسیح نے خدا کی مرضی کو پورا کیا. خدا کی مرضی یہ ہے کہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، وہ سب کی توبہ کرنا چاہتا ہے. انسان کو بھی خدا کے ساتھ چلنا چاہیے، اس کی مرضی کو پورا کرنا چاہیے. تو آج ہمارا چوتھا پوائنٹ، انسان کا بھی اس کو پورا کرنا کو بھی پورا کرنا چاہیے. انسان کو بھی پورا کرنا اس بات کو ضروری ہے، اس کی مرضی کو جاننا ضروری ہے، اس کی مرضی کو پورا کرنا ضروری ہے کہ خدا کیا چاہتا ہے، خدا کی مرضی کیا ہے. جیسے مسیح نے خدا کی مرضی کو کیا کیا جی، پورا کیا ہے. تو میں سب ریفرنس نکالیں اس کے لیے. چوتھا پوائنٹ ہے، نوٹ کر لیجیے گا، لکھ لیجیے گا اس کو. عبرانیوں 10:26 نکالیں. ہمارا چوتھا پوائنٹ عبرانیوں 10:26. اس میں لکھا ہے، سب نے نکال دیا جی، پڑھتا ہوں میں. کیونکہ حق کی پہچان حاصل کرنے کے بعد اگر ہم جان بوجھ کر گناہ کریں تو گناہوں کی کوئی اور قربانی باقی نہیں رہی. پالوس رسول عبرانیوں کی کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے انہیں بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی قربانی جو ہمارے گناہوں کے لیے صلیب پر دی گئی ہے، جو خون بہایا گیا ہے، اگر ہم اس کی قدر نہیں کرتے، اگر جانتے ہوئے بھی ہم گناہ کرتے ہیں، تو پھر اور کوئی قربانی اس کے علاوہ نہیں جو ہمیں بچا سکے. اس لیے لکھا ہے کیونکہ حق کی پہچان، حق کون ہے؟ حق مسیح ہے، راہ مسیح ہے، دروازہ مسیح ہے، نجات دہندہ مسیح ہے. اس لیے لکھا ہے کیونکہ حق کی پہچان حاصل کرنے کے بعد، کہ مسیح کی پہچان حاصل کرنے کے بعد، مسیح کو جان جانے کے بعد، مسیح پر ایمان لانے کے بعد، مسیح کے کفارے کو ماننے کے بعد، بپتسمہ لینے کے بعد، مسیح پر ایمان لانے کے بعد اگر ہم حق کو نہیں پہچانتے، گناہ کرتے ہیں، تو لکھا ہے ہم جان بوجھ کر گناہ کریں تو گناہوں کی کوئی اور قربانی باقی نہیں رہے. آگے ہم اس کی ڈیٹیل پڑھیں تو لکھا ہے ہاں، عدالت کا ایک دن کتنا ہولناک ہوگا، جو خطرناک جسے کہا جاتا ہے. اس دن کو کہتے ہیں نا، خدا اس غضب سے بچائے لوگوں. جو پرانے لوگ ہیں نا، کہتے ہیں خدا اس غضب سے ہمیں بچائے. وہ بہت بڑا غضب ہوگا اگر ہم اس کی قربانی کی قدر نہیں کریں گے، اس کے ہم اس لہو کی قدر نہیں کریں گے. اگر ہم نے توبہ کر لی ہے، اگر ہم نے اس پر ایمان لے آئے ہیں، تو پھر اس قربانی میں ہمیں کیا رہنا ہے جی؟ قائم رہنا. اس کی قربانی پہ کیا رہنا ہے؟ قائم رہنا ہے. اگر اس کی آگے والی آیتیں پڑھیں تو اس میں آپ پڑھ لیجئے گا، لکھا ہے، بلکہ میں پڑھ ہی دیتا ہوں. اس کی 28ویں آیت ہمیں بتاتی ہے، دیکھیے گا. 26 ہم نے پڑھی تھی، 27 28 میں بلکہ کلیئر ہو جائے گا اس میں. اور لکھا ہے جب موسیٰ کی شریعت کا نہ ماننے والا، جب موسیٰ کی شریعت کا نہ ماننے والا جو 2 یا 3 شخصوں کی گواہی سے بغیر رحم کے مارا جاتا تھا. جب شریعت کی کتاب ہمیں بتاتی ہے، جو موسیٰ کی شریعت تھی، اس میں اگر کوئی گناہ کرے یا 2 شخص گواہی دے دے، ہاں جی یہ غلط ہے، اس نے کیا ہے، تو کہہ رہا بغیر رحم تو اس کو مار دیا جاتا ہے. کوئی رحم اس پر. شریعت تھی یہ، موسوی شریعت کے اندر اگر گناہ ثابت ہو جاتا، آپ جانتے ہیں کہ ایک عورت جو عین وقت پکڑی گئی، اسے یسوع کے پاس لایا گیا اور کہا گیا کہ یسوع یہ عورت گنہگار ہے، ہم نے اسے دیکھا ہے، تو اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو یسوع زمین پر جھکا. یسوع نے کچھ لکھنا شروع کیا اور سب کے ہاتھ میں پتھر تھے. لکھا ہے کہ موسیٰ کی شریعت کہتی ہے کہ جو گناہ کرے، جو گناہ میں پکڑا جائے، اسے سنسار کیا جائے، اسے مار دیا جائے. لیکن خداوند یسوع تو اس کے بارے میں اے استاد کیا کہتا ہے؟ اور یسوع مسیح زمین پر جھکے، کچھ لکھنے لگے اور کہا بالکل موسیٰ کی شریعت یہی کہتی ہے کہ اسے مار دیا جائے، اسے سنسار کر دیا جائے. لیکن شرط، کنڈیشن ایک، دیکھیں مسیح کی شریعت کیا کہتی ہے، دیکھیں مسیح کیا کہتا ہے، مسیح کی محبت کیا کہتی ہے. اس نے کیسے ضرور مارے، موسیٰ کی شریعت یہی کہتی ہے.
लेकिन इसे पत्थर वो मारे जिसने आज तक गुनाह ना किया। सारे पत्थर चाट के भाग, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह अंदर को जानता है, वो ख्यालों को जानता है, वो सोचों को जानता है कि इसके अंदर क्या है। उसने कहा बिल्कुल जरूर इसे मारें, इसे संसार करें, क्योंकि मूसा की शरीयत यही कहती है। लेकिन मैं कहता हूं इसे पत्थर वो मारे जिसने आज तक खुद गुनाह ना किया। और बाइबल पढ़ के देख लें, सारे उस पत्थर को छोड़कर भाग गए। अगर वो पत्थर छोड़ के ना भागते ना तो खुदा यीशु मसीह, मैं कहता हूँ सारे ने दस देता कि तूने ये किया, तूने ये किया, तूने ये किया, तूने ये किया, तूने ये किया। उसके पास पूरी रिकॉर्डिंग है हर चीज़ की। हम तो आज ये मोबाइल हमारे पास आ गए ना, हम कहते हैं बड़ी तरक्की हो गया है, असं अमेरिका गल कर रहे हैं, जापान गल कर रहे हैं, पता नहीं कितने कितने गल कर रहे हैं, लैंग्वेज हम कहाँ बात कर रहे हैं। लेकिन लिखा है खुदा ने हमारी सूरत को अपनी हथेली पर खोद रखा है। अज़ल से उसने ये कैमरे बना रखे हैं, अज़ल से वो सारी चीज़ें उसके पास रिकॉर्डेड हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या करता हूँ, एक एक चीज़ मेरी रिकॉर्डेड है। जब अदालत होगी मैं नहीं मानूंगा ना, नहीं खुदा मैंने किया, तो खुदा मुझे पूरी वो स्क्रीन दिखा सकता है कि ये तूने इस वक्त किया, ये तूने इस वक्त किया। तो इसलिए हमने खुदा के कलाम में से पढ़ा है, इंसान को भी खुदा की मर्जी को पूरा करना चाहिए। उस पर जब ईमान ले आए हैं तो जो कुछ कलाम कहता है उस पर हमें अमल करना चाहिए। इसलिए शरीयत यही बताती है बगैर रहम के, देखा है 2-3 शख्सों की गवाही से बगैर रहम किए मारा जाता था। तो ख्याल करो कि वो शख्स किस कदर ज्यादा सजा के लायक ठहरेगा। लिखा है, क्या लिखा है जी? तो ख्याल करो कि वो शख्स किस कदर ज्यादा सजा के लायक ठहरेगा जिसने खुदा के बेटे को पामाल किया, जिसने खुदा के बेटे को पामाल किया। जब शरीयत ये कहती है कि इसे बगैर रहम के मार दिया जाए, तो जो बेटे की, हाँ यही लिखा है ना, तो ख्याल करो कि वो शख्स किस कदर ज्यादा सजा के लायक ठहरे जिसने खुदा के बेटे को पामाल किया। जब हम बपतिस्मा ले लेते हैं, मसीह पर ईमान ले आते हैं, नए मखलूक बन जाते हैं, फिर गुनाह करते हैं, तो हम मसीह को पामाल करते हैं, हम उसकी बेइज्जती करते हैं, हम उसे दोबारा सलीब पर चढ़ाते हैं, हम उसकी बेहुरमती करते हैं, हम उसकी बेहुरमती करते हैं। ये लिखा है जिसने खुदा के बेटे को पामाल किया, वो अहद के खून को जिससे वो पाक हुआ था नापाक जाना और फजल के रूह की बेइज्जती की, उसे बेइज्जत किया। ये लिखा है, उसे क्या किया जी? इसलिए इंसान को चाहिए कि वो खुदा की मर्जी को पूरा करे और अपने आप को खुदा के हवाले कर, और अपने आप को खुदा के हवाले कर दे कि खुदा तू मुझे संभाल, तू मेरा जुम्मा ले, जिस तरह तू चाहता है मुझे लेकर चल। जिस तरह खुदा यीशु मसीह ने खुदा की मर्जी को पूरा किया, वो कि वो जानता है, देख रहा है कि आज रात मुझे पकड़ा दिया जाएगा, मुझ पर कोड़े बरसाए जाएंगे, मुझे बरहना किया जाएगा, मुझे मारा जाएगा, मेरी दाढ़ी को नोचा जाएगा, मुझ पर थूका जाएगा, बहुत बड़ा दुख मेरे ऊपर आएगा। लेकिन वो भी उसने कहा खुदा मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। तो इसलिए तो मसीह ने खुदा की मर्जी पूरी की। ये तीसरा पॉइंट था, इंसान को भी खुदा की मर्जी को पूरा करना चाहिए। आमीन। सारे कहें हम खुदा की मर्जी को पूरा करें, खुदा उनकी फजल हम पर करेगा। आमीन। तो खुदावन के सुपुर्द जब हम करेंगे तो खुदा हमारी जिंदगियों का जुम्मा लेगा, हमें संभालेगा और हम खुदा की मर्जी को पूरा करेंगे। अगर हम पूरा नहीं करते तो फिर हम लिखा है कि उसकी बेइज्जती करते हैं, उसे पामाल करते हैं, उसके फजल को नाचीज जानते हैं, उसके फजल को नाचीज जानते हैं, कुछ भी हम उसके फजल को नहीं समझते। नंबर 1। फिर उसके लिए अगर रेफरेंस पढ़ें, मेरे पास इफ्सियों 6 निकालें, इफ्सियों का 6वां बाब, इफ्सियों 6वां बाब और उसकी 6 और 7 में आज मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। जी लिखा है, और आदमियों को खुश करने वालों की तरह दिखावे के लिए खिदमत ना करो। क्या लिखा जी? और आदमियों को खुश करने वालों की तरह दिखावे के लिए खिदमत ना करो, बल्कि मसीह के बंदों की तरह दिल से खुदा की मर्जी पूरी करो। हमें इंसान को चाहिए कि हम इंसानों को खुश नहीं, हमारा खुदा खुश होना चाहिए।
जो काम करें जी से करें, ये जानकर खुदा उनके लिए करते हो, ना कि आदमियों के लिए। इट मीन कि हमने खुदा की मर्जी को पूरा करना है। तो खुदा हमारे अंदर को जानता है, हमारी सोचों को जानता है, ख्यालों को जानता है। जैसा हम सोचेंगे वो हमारे लिए वैसा ही करेगा। और लिखा है, आदमी को खुश करने वालों की तरह दिखावे के लिए खिदमत ना करो, बल्कि मसीह के बंदों की तरह दिल से खुदा की मर्जी को क्या करो जी, पूरा करो। और उस खिदमत को आदमियों की नहीं बल्कि खुदावन की जानकर जी से करो। आमीन। ये पढ़ा जी। और इंसान को भी खुदा की मर्जी को पूरा करना है। यही पौलुस रसूल इफिसियों की कलीसिया को भी लिख रहे हैं। ये वही पौलुस रसूल हैं जिन्हें दूसरे मसीह का टाइटल दिया गया है, जिसे दूसरा मसीह कहा गया है। वो इसलिए लिख रहे हैं, और उस खिदमत को आदमियों की नहीं बल्कि खुदावन की जानकर जी से करो। कलाम में लिखा है कि जो कोई खादम की इज्जत करता है, अगर वो उसे नबी समझकर उसकी खिदमत करता है तो वो नबी का अजर पाएगा, तो वो नबी का अजर पाएगा। अगर पास्टर समझ के उसकी खिदमत करता है तो पास्टर जैसा अजर पाएगा। अगर मुबश्शिर समझकर उसकी खिदमत करता है तो मुबश्शिर का अजर पाएगा। एल्डर समझ के उससे इज्जत करता है तो उसका अजर पाएगा। डीकन समझ के उसकी, खुदा के घर का खादम समझ के उसकी इज्जत करता है तो उसका अजर पाएगा। इसलिए कलाम कहता है कि खादम दो चंद इज्जत के लायक है। खादम दो चंद इज्जत के लायक है। खादम की इज्जत करने का मकसद कि हमने खुदा की इज्जत की। शर्त ये जरूर है तो वो खादम बुलाया हुआ हो, चुना हुआ हो, अलग किया हुआ हो, वो खादम। मैं कहता हूँ खादम जो कुछ कहे वो हो जाता है। आमीन। मैं चाहती हूँ जो कुछ कहते हैं वो होता है। कलाम कहता है कि एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था, क्योंकि खुदा की मर्जी को वो पूरा करता था। उसने जोश से दुआ की, 3.5 वर्ष के लिए आसमान को क्या किया जी, बंद कर दिया। 3.5 साल बारिश हुई नहीं। और उस वक्त के दौर में जो थी कि बारिश अगर ना होती तो पानी नहीं मिलता, तो ज़मीनों में हरियाली नहीं हो सकती थी, फसल नहीं। आज भी ऐसा ही है, तो ऐसा ही हो अज़ल से चलता आ रहा है। उसने दुआ की, 3.5 वर्ष तक आसमान को क्या कर दिया जी। जो शख्स खुदा की मर्जी को पूरा करता है, जो खादम खुदा की मर्जी को पूरा करता है, जो ईमानदार खुदा की मर्जी को पूरा करता है, जो शख्स भी अपनी जिंदगी में खुदा की मर्जी को पूरा होने देता है, खुदा को अलाउ करता है, इजाजत देता है कि खुदा तेरा कंट्रोल मुझ पर होना चाहिए, तू मेरा है और मैं तेरा हूँ, तेरे सिवा मैं कुछ भी नहीं हूँ। खुदा उसके वसीला से अजीब और जलाली काम करने की कुदरत। आमीन। इसलिए खुदा यीशु मसीह ने खुदा की मर्जी पूरी की। हमें भी चाहिए कि हम खुदा की मर्जी, इंसानों को भी चाहिए कि हम खुदा की मर्जी पूरी करें। खुदा ने इसलिए इंसान को बनाया कि वो खुदा के साथ मिलकर काम करे, उसकी मर्जी को क्या करे जी। हमें इंसान को क्या करना चाहिए, खुदा की मर्जी को पूरा चाहिए। अगर मर्जी को पूरा नहीं करेंगे, आए मेरे साथ एक हवाला निकाले, मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई जी, उसका 7वां बाब और 21वीं आयत। मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 7वां बाब और उसकी 21वीं आयत हमें बताती है जी। लिखा है, जो मुझसे खुदावन ए खुदावन ए खुदावन कहते हैं, उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल। देख लें जी कलाम क्या कह रहा है, सुन लो। जो मर्जी पूरी नहीं करेगा, लिखा है उनमें से हर एक जो मुझसे क्या कहेगा, ए खुदावन ए खुदावन। लिखा है जो मुझसे ए खुदावन कहते हैं, और उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा, मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर, जो मेरे बाप की क्या करते हैं जी, आसमानी बाप की मर्जी पर चलते हैं, वही आसमान की बादशाही में दाखिल। ये लिखा है जी, कलाम यही बता रहा। लिखा है उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा, मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है, वही आसमान की बादशाही में दाखिल होगा। यही कलाम में पढ़ा जाए। तो इसलिए मर्जी को पूरा करना कितना जरूरी हुआ। खुदा हमारे दिलों पर राज करे, हमारी जिंदगियों पर उसका राज हो, हमारी जिंदगियों पर उसकी हुकूमत हो।
کیا 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 کمال کی بات ہے، کیا خوبصورتی ہے. اوہ مائی گاڈ. خدا اگر ہمارے دلوں پہ راج کرے، خدا کو ہم الاؤ نہیں کرتے. پتہ ہے ابھی خدا نے کچھ سمجھتے نہیں، بس سمجھنا ٹھیک ہے خدا اپنا کام کر رہا ہے، سانو اپنے سانو بڑے کام ہیں. جی میں کچھ سانو بڑے کام ہیں، ہم تو بڑے سمجھدار ہیں، ہم بڑے عقل مند ہیں. ساڑھے تو تیرنے ایسی بیزی ہیں، ساڑھے کو ٹائم ہی نہیں. لیکن لکھا ہے جو مجھ سے اے خداون کہتے ہیں ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا. پھر یعنی آسمان کی بادشاہی پتہ نہیں کیڑی آسمان کی کدوں ہوئے گی، کدوں دیکھیں گے، جدوں ہوئے گی ویکھی جاتی جائے گی. یہی سوچتے ہیں میں کچھ کب ہوگی، کیا ہوگا. اسی ازل سے یہی سنتے آ رہے ہیں باپ دادا تو، آئے گی بادشاہی کدوں آئے. افسوس جس پر یہ فضل ہو جائے کہ وہ اس دنیا کو کوڑا اور کرکٹ سمجھے اور اس عالم والا کو ہمیشہ کا راج سمجھے، حکومت سمجھے، ہمیشہ کی زندگی سمجھے اور ہمیشہ سکون سمجھے. کیا 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 ہی خوش قسمتی کی بات ہے جس پر یہ فضل ہو جائے. ہم زور ہی نہیں مارتے، ہم کہنے ہیں جہان. لوگ آگے سے پوچھیں نا تو پنجابی کی مثال دیتے ہیں اے جہان میٹھا اگلا کنے دیکھا. اس کا مطلب کہ اگلا کس نے دیکھا ہے. ہم اس جہان کی فکر میں رہتے ہیں، اس جہان میں کھوئے رہتے ہیں، اس جہان سے باہر ہم نکلتے ہی نہیں. جن کو سمجھ مل جاتی ہے، جن کو پہچان ہو جاتی ہے، جو خدا کے قریب ہو جاتے ہیں، جنہیں خدا نے ڈھونڈ لیا ہے، جو اسے مل گئے ہیں، جو اس کے ساتھ چلتے ہیں. ابراہم کی ایگزامپل دیکھ لیں، اس کے پاس سب کچھ تھا، دولت تھی، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ مالدار شخص تھا، سونا چاندی کثرت سے اس کے پاس تھا. اگر پیدائش کی کتاب 12واں باب پڑھے تو اس میں لکھا ہے سونا چاندی کثرت سے اس کے پاس تھا، مویشی اس کے پاس کثرت سے تھے، کھیت اس کے پاس، فصلیں کثرت سے، کنویں کثرت سے، ہر ایک چیز کثرت سے اس کے پاس تھی. لیکن وہ کہتا ہے میں ساری چیزوں کو کوڑا اور کرکٹ سمجھتا ہوں. یہ وقتی ہیں، تھوڑے ٹائم کے لیے ہیں. میں آسمانی چیزوں کی تلاش میں رہتا ہوں جو ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گی، جو ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گی. میں ان کی تلاش میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس دنیا میں چیزیں ہونی نہ. ابراہم کے پاس تھی تو میں نہ ساڑھے کو اتنی زیادہ ہونی چاہیے. لیکن خدا کہتا ہے دل ان سے نہیں لگا. کیا نہیں کرنا؟ کیونکہ ہم دو مالکوں کی خدمت کر سکتے کوئی. اسی دولت سے بھی پیار کریں اور دولت کو بھی عزیز رکھیں اور خدا کو بھی عزیز رکھیں، ایسا ہو نہیں سکتا. خدا یسوع مسیح کا ہی لفظ. تو اس لیے دولت کو ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ یہ ہماری ضرورت ہے، وقتی ہے، اس جہاں کے لیے ہے. اس کو ادھر کا مال ادھر ہی خرچ کر. ادھر کا مال. ایک نوجوان یسوع کے پاس آیا، بڑا مالدار. ایک نوجوان یسوع کے پاس آیا اور سوال کرتا ہے کہ اے خداوند، اے ربی، اے استاد، میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث. اچھا انہوں پتا سی کہ ہمیشہ کی زندگی ہے سر، یہ شکر ہے انہوں پتا سی. لیکن یسوع کے پاس آیا، بھائی یسوع کے پاس آیا کہ میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں. تو یسوع نے اسے کہا حکموں پر عمل کر. تو کہتا وہ تو میں نے بچپن سے کیا ہے، وہ تو میں بچپن سے کر رہا ہوں. یسوع نے جب اس پر نگاہ کی، یسوع اس کو سمجھانا، یہ ٹاپک اور نکل جائے گا، اس کا شارٹ کٹ آپ کو بتاتا ہوں. چلو ایک پورا میسج ہے اس میں، پھر کبھی سیکھیں گے، دیں گے. یسوع نے جب اس پر نگاہ کی تو کہا تجھ میں ایک بات کی کمی ہے. تو چونک اٹھا، کہتا وہ کون سی بات ہے؟ میں نے پوری شریعت پر عمل کیا ہے. یسوع نے کہا اگر تو ہمیشہ کی زندگی چاہتا ہے تو جو کچھ تیرے پاس ہے بیچ کر غریبوں کو دے، تجھے آسمان پر خزانہ. کلام کہتا لوٹ کے نہیں آیا. یہ لکھا کلام میں، وہ لوٹ کے چلا ہی گیا. وہ سمجھا ہی نہیں نہ عقل، اس کی عقل ہی بند ہو گئی. اس دولت میں اتنا وہ مگن ہو گیا کہ اتنی محنت سے میں نے یہ دولت کمائی ہے، یہ آندہ اپنے غریبان دے دے، ساری بانٹ دوں گا کہ تینوں آسمان تے آسمان کدوں ملے گا. وہ پتہ نہیں کدوں ملے نہ ملے. میں اتنے جمع کر کر کے تھک گیا، اتنی محنت جھوٹ کڑا مار مار کے جمع کیتا ہے تو میں اڑا دیں گے. بھائی ایڈی جلدی سارا کچھ ختم کرتے ہیں. ایک نہ میری عزت شان ہے. ہاں لوگ میرے تو تھوڑا ڈرتے دورتے ہیں، میری عزت کر دیں تو پیسہ کیوں میرے کو. لیکن کلام کہتا ہے کہ وہ لوٹ کر واپس وہ ہمیشہ کی زندگی سے اس کے دروازے بند ہو جائے. غافل رہا، اس دولت سے پیار کرتا رہا. دولت بری چیز نہیں، دولت سے پیار کرنا بری چیز ہے. دولت کو خدا سے زیادہ عزیز سمجھنا بری بات ہے.
दौलत को सब कुछ समझ लेना ये बुरी बात है। दौलत हरगिज़ बुरी नहीं। आप किताब बाइबल को पढ़ के देख लें, वहाँ अय्यूब का जिक्र देख लें, अब्राहम का जिक्र देख लें, और बहुत से ऐसे जिक्र मिलते हैं जो बहुत दौलतमंद थे, जिनके पास बहुत कुछ था, लेकिन दौलत से प्यार करना बुरी बात है। दौलत को इस यहाँ के माल को इतना ही खर्च करना, ये यहीं रह जाएगा। बड़े बड़ों को देखें, एक एग्जाम्पल है, पता नहीं कौन से बादशाह की एग्जाम्पल देते हैं, उसकी जो खजानों की चाबियाँ थी ना, वो ऊँटों पर जाती थी। इतना कुछ माल था, उसके जो खजानों की चाबियाँ थी वो ऊँटों के ऊपर जाती थी। लेकिन जब वो मरा तो उसने कहा जब मैं मरूंगा तो मेरे हाथ कफन से क्या रखना, ताकि लोगों को ये नसीहत हो सके कि यहाँ का माल यहीं रह जाता है, कोई चीज़ भी हम साथ लेकर नहीं जाते। तो इसलिए ये एग्जाम्पल्स हैं, समझना चाहिए कि ये माल हमारे किसी काम नहीं आएगा। हमने यीशु के कलाम पर अमल करना है और अपनी ज़िंदगी में उसकी मर्ज़ी को पूरा करना है। इसलिए लिखा है इंसान को ज़रूरी है कि उसकी मर्ज़ी को क्या करे, पूरा करे। इसलिए लिखा है कि जो मुझसे ए खुदावंद कहते हैं उनमें से हर एक आसमान की बादशाह में दाखिल ना होगा, मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्ज़ी पर चलते हैं। उस दिन बथेरे मुझसे कहेंगे ए खुदावंद क्या हमने तेरे नाम से नबूवत नहीं की, और तेरे नाम से बदरुओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से मोजज़े नहीं किए। आगे वाली आयत देखिए 23 में आयत क्या बताती है। उस वक्त मैं उनसे साफ कह दूंगा, उस वक्त मैं उनसे साफ कह दूंगा। साफ का लफ्ज आया है, कौन सा लफ्ज आया जी? साफ कह दूंगा कि मेरी तुमसे वाकफियत नहीं। हाँ, वो तो की करोगे दसो। उस वक्त हम क्या करेंगे? खुदा यीशु मसीह कहेगा कि मेरी तुमसे, जी बहन किरण, मेरी तुमसे वाकफियत नहीं, मैं तुम्हें जानता ही नहीं। वो कहेंगे हमने बड़े मौजे किए, बड़ा कुछ हमने किया, हमने ये किया, हमने बड़े बड़े क्रूसेड भी किए, बहुत कुछ किया, लेकिन वो कहेगा मेरी तुमसे वाकफियत ना थी। ऐ बदकारो, आगे बड़े लफ्ज को ये सुने, ओके मतलब मुश्किल का, ऐ बदकारो मेरे पास से चले जाओ, क्योंकि तुमने खुदा की मर्जी को पूरा नहीं किया बल्कि अपनी मर्जी को पूरा किया है। इसलिए खुदा की मर्जी को पूरा करना जरूरी है। तो खुदा की मर्जी को पूरा करना कितना जरूरी है? खुदा की मर्जी को पूरा करना कितना जरूरी हुआ, इसलिए हमें खुदा की मर्जी को पूरा करना चाहिए। अपने आप को खुदा के सुपुर्द करना चाहिए, अपने आप को खुदा के हाथों में देना चाहिए कि खुदा हम तेरे हाथों में महफूज हैं, तू हमें इस दुख भरे जहां में महफूज रख सकता है, तू हमें संभाले तो सब कुछ हो सकता है। हमारी अकल, हमारी ताकत नाकस है, हम कुछ भी अपनी अकल और ताकत से कर। इसलिए खुदा की मर्जी खुदा मेरी जिंदगी में पूरी हो, तो इसलिए खुदा की मर्जी को हमें पूरा करना है। पहला पत्रस का 4 बाब निकाल एक लक्षण 100 पत्रस का पहला आम खत है जी, उसका 4 बाब। पत्रस का पहला आम खत उसका 4 बाब और उसकी दूसरी आयत में आपके लिए पढ़ रहा हूँ। देखा है, आइंदा को अपनी बाकी जिस्मानी जिंदगी आदमियों की ख्वाहिशों के मुताबिक ना गुजारना। पढ़े जी, सिख लिखें, देखिए कलाम क्या कह रहा है। कलाम में लिखा है आइंदा को अपनी बाकी जिस्मानी जिंदगी, कहते जितनी हो तो आज इस कलाम सुन लिया ना, सुनिए जितना कलाम अब तूने आज सुन लिया है, आज के बाद जितनी जिंदगी तेरी बची है वो कैसे गुजारना। लिखा है आइंदा को अपनी बाकी जिस्मानी जिंदगी आदमियों की ख्वाहिशों के मुताबिक ना गुजारना, बल्कि खुदा की मर्जी के मुताबिक, बल्कि खुदा की मर्जी के मुताबिक। ये लिखा है कलाम हमें बता रहा है। पत्रस का पहला आम खत है, उसके 4 बाब में यही लिखा है। तो हमने खुदा की मर्जी के मुताबिक क्या करनी है? जिंदगी गुजारनी। किसके मुताबिक गुजारनी है? खुदा। तो जब हम खुदा की जिंदगी के मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारेंगे तो वो कह रहा है मैं उनसे साफ कह दूंगा कि मेरी तुमसे कोई वाकफियत नहीं। तो इसलिए अगर वाकफियत चाहते हैं, अगर चाहते हैं कि खुदा यीशु मसीह हमारा जोर हो, हमारी कुव्वत हो, हमारी चट्टान हो, तो फिर हमें उसकी मर्जी को पूरा करना जरूरी। आगे पढ़े, आगे और पढ़ा लिखा है। अच्छा, इसके बाद लिखा है इस वास्ते के गैर कौमों की मर्जी के माफी काम करने और शहवत परस्ती
बुरी ख्वाहिशों, मैं खोरी, नाच रंग, नशाबाजी और बहुत सी चीजें आगे पढ़ लें। ये सब कुछ हम करते हैं या नहीं करते? क्या चाहते हैं? शादी हो जाए ना या कोई ऐसा खुशी हो जाने, जब तक नाचना लिए ना टपना नहीं तो काम तो पूरा नहीं होता। वो एक बंदे बच्चे ने मैंने समझाया, मैं कि यार क्रिसमस का मौका है तो शराब नहीं पीते, बुरी बात है, कलाम में बुरा लगे। कहता सर कभी कभी क्रिसमस आंदा है कोठी पे लाना होता है। हमने मसीह को पहचाना है, हमने मसीह को जाना है कि वो किस लिए इस जमीन पर आया है। तो आज हमने इरादा किया हमने कि हम 3 इलाकों में जाएंगे जिनमें ज़्यादा लोग शराब पीते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा, कमी कमजोरियां हर इंसान के अंदर हैं। तौबा करने से पहले हम भी शराब पीते थे, जना गुनाह सारा कुछ चल रहा था, लेकिन जब समझ आ गई ये चीज़ें ठीक नहीं हैं, ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं, मसीह ऐसा नहीं चाहता, मसीह ज़िंदगी ऐसी नहीं होनी चाहिए, तो फिर उनको तर्क करना शुरू, आहिस्ता आहिस्ता दर्जा बदर्जा खुदा ने उन पर गलबा देना शुरू। तो इसलिए अब हमारी ये ड्यूटी है कि अगर खुदा ने हमें ये तौफीक बख्श दिया है, खुदा ने हमें ये फजल हम पर कर दिया है, तो हम दूसरों तक भी जाएं, उन्हें बताएं कि मसीह के आने का मकसद क्या है, मसीह क्यों इस जहान में वो शराब पिलाने नहीं बल्कि छुड़ाने आया है, वो गुनाह करवाने नहीं बल्कि गुनाहों से निजात दिलाने आया है। हाँ, वो मारने नहीं बल्कि जिंदगी देने आया है। हाँ, वो अदालत करने नहीं बल्कि रहम करने आया है। वो रहम के लिए, लेकिन अब जब आएगा तो अदालत करने, लेकिन अब जब पहले वो रहम करने आया, पहले वो अदालत करने वो मौका देता है ना, पहले वो रहम करने आया, अब वो अदालत करने आएगा। तो इसलिए लिखा है नाच रंग बाकी चीज़ें, ये सारी चीज़ें बुत परस्ती जिस कदर हम पहले वक्त में गुजारते, पहले वक्त में सारा पहले अब ये वक्त तमाम छोड़ दे सारी चीज़ें, इनको हमने क्या करना है। इसलिए लिखा वक्त के हिसाब से तुम्हें क्या होना चाहिए, वक्त के हिसाब से तुम्हें उस्ताद जैसे जी शागिर्द भी नहीं, ये सच क्या शागिर्द असी अजय शागिर्द, हम अभी शागिर्द यूसुफ भाई हम अभी शागिर्द भी नहीं बने, हम नए इंसान नए मखलूक बने ही नहीं, कई कोसों हमसे दूर। अरे नया मखलूक नया इंसान, मसीह की शरीयत हमें ये सिखाती है, ये बताती है कि हम में और आम दुनिया में फर्क नजर आना चाहिए। हमारा रहन सहन, हमारी गुफ्तगू, हमारी बातचीत से अगलों को ब्लेसिंग मिले, बरकत मिले, वो किरदार को देखकर बदल जाए। एक एटा अच्छा है, बहन एटी अच्छी है, भाई इतने अच्छे हैं, इनका किरदार, इनकी गुफ्तगू ऐसी शरी है, कितने खूबसूरत बात करते हैं, क्या अंदाज है इनके पास बात करने, क्या नफासत है। तो इन्होंने मसीह कितना खूबसूरत, उस मसीह को देखने की जुस्तजू पैदा हो जाए कि जिन्हें इन पर रहम किया है, जिस मसीह ने इनको बचाया है, इन पर फजल किया है, वो मुझ पर भी फजल कर दे, मुझे भी ऐसा बना दो। हम चलती फिरती अंजील, हम चलती फिरती अंजील, तो अंजील नजर आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, अंजील नजर आनी चाहिए।